تیرا نسب حسینی، تیرا نسب حسینی، سادات ہے گھرانہ اے اشرف زمانہ، اے اشرف کو دیں گے تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ آپ جان رہے ہیں کہ یہ پیسے والا ہے، مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ہوگی نہیں؟ سب کو پتا ہے، ہر مسلک کے مولوی کو معلوم ہے، اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے۔ اب جب یہ زکوٰۃ آپ مستحق کو نہیں دیں گے تو ہوگی نہیں، مستحق کو دیں گے تو ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز بھی ہے، نماز اس کے پیچھے پڑھیں جو امام سچا ہو تب تو ہو جائے گی، اور امام کا رشتہ صادقین اور سچوں سے کٹا ہوا ہے تو نماز آپ کی ہوگی نہیں۔ تو آج یہ مسئلہ بتایا جائے تو آپ لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کا جھگڑا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ اگر غیر مستحق کو دیا جائے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، اسی طرح نماز غیر صادقین کے پیچھے ادا کی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ جو امام حسین کو سچا مانتا ہو، جو اولیاء کرام کی عزت کرتا ہو، اس کے پیچھے نماز ادا کرو گے تو نماز ہوگی، اور نہیں ادا کرو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو سچوں کے احترام کرنے والوں کے پیچھے ہی نماز ادا کرو، اور جس کا کنیکشن جھوٹوں سے ہے ان کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے بس کولو کے بیل کی طرح محنت کرتے رہ جاؤ گے۔ نماز مقصد یہ ہے کہ نماز صرف پڑھی نہیں جاتی، نماز بچائی بھی جاتی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز بچاؤ، نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو مذہب حق پر جو ٹکا ہوا ہے، وہ جو ثابت قدم ہے، جو ولیوں کے احترام کے ساتھ عقیدت و محبت رکھتا ہے، اسی کے پیچھے نماز ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہماری؟ نہ سمجھ میں آئی ہو تو پھر پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی اس خاموشی سے لگتا ہے کہ بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آئی۔ اب ہم تقریر تبھی ختم کریں گے جب سارے لوگ زور سے کہیں گے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ ابھی 1 گھنٹہ اور بولیں، پھر سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آگے والے لوگوں کو بھوک تیز سے لگی ہے، پیچھے والے لوگوں کو نہیں لگی ہے، اس لیے یہ لوگ چاہ رہے ہیں جلدی سے ختم ہو جائے، اور پیچھے والے لوگ ابھی نہیں چاہ رہے ہیں، پھر سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کوئی بھیا ٹھان ہی کے بیٹھا ہو کہ ہم نہیں کہیں گے تو اس کی مرضی ہے، اللہ اسے بھی توفیق دے کہ وہ اوروں کا نام لینے میں شرم محسوس نہیں کرتا، لیکن یا رسول اللہ کہنے میں اسے شرم آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدہ باطلہ سے اس بندے کا دل صاف کرے، اور ہم اللہ کے رسول کو نہیں پکاریں گے تو اور کسے پکاریں گے، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو قرآن میں کہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر معاملے میں ساتھ رکھا، ہر معاملے میں ساتھ رکھا ہے۔ قرآن پڑھیں اور نہ پڑھنا آتا ہو تو ہم سے سیکھے سمجھے، انشاءاللہ وہ آیتیں میں دکھاؤں گا 100 سے زیادہ جہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کو شامل رکھا ہے، رسول کو تنہا نہیں چھوڑا، اور ہر جگہ کہا ہے رسول کے خلاف تحریک چلانا، اس کے خلاف تحریک چلانا ہے تو آپ سچوں کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب، ہمارا معاملہ سچوں کے ساتھ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کر سلام کرو۔ تو اب کیا ہے، ہم نے جو طرز عمل اپنایا ہے، طرز زندگی اپنائی ہے، صبح و شام کو جس ٹریک پر اتار دیا ہے، وہ کیا ہے کہ اب ہمیں دعوت کہیں سے بھی ملے ہم کھا لیں گے، ہمیں دوستی کہیں سے بھی آئے ہم اپنا لیں گے، ہمیں رشتہ کوئی بھی دے ہم اختیار کر لیں گے، کیونکہ ہم نے اللہ رسول کو ضرورت کے حساب سے اپنایا، ایمان کے حساب سے نہیں اپنایا۔ اور یاد رکھیں، فرمانے ارشاد رسول پاک ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے دل میں 1 ٹائم کی نماز ہوگی وہ جنت میں چلا جائے گا، ایمان ہو چاہے نہ ہو، یہ کہیں بھی فرمان ہے نہیں۔ ذرا غور سے سنیں،
तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि आप सुन लेंगे और अगर एक ने भी मान लिया हमारा वहां से यहाँ आना कामयाब, यहाँ बैठना बोलना कामयाब, क्योंकि भैया हम लोग दावत खाने वाले मिलादी नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है जो दावत खाने वाले मिलादी हैं, ये वो समझे और उनका रब समझे। मिलादी बनो तो अहमद मुख्तार के लिए, मिलादी बनो तो हुब्बे रसूल के लिए, मिलादी बनो तो दीनी जज्बे को अपने दिलों में उतारने के लिए, मिलादी बनो तो ईमानी हरारत को और गर्म करने के लिए, मिलादी बनो तो अपने बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की तरफ आने के इरादे और मंशा के लिए, मिलादी बनो तो घमंड और गुरूर को खत्म करने के लिए, मिलादी बनो तो अदब लेने के लिए, बेअदबी छोड़ने के लिए, मिलादी बनो तो फजर में उठने के लिए, मिलादी बनो तो इशा तक नमाजें अदा करने के लिए, मिलादी बनो तो हक व सदाकत के पैगाम को आम करने के लिए, मिलादी बनो तो बेहयाई का लिबास उतारने के लिए, मिलादी बनो तो सिद्क़ व सदाकत के साथ जिंदगी गुजारने के लिए, मिलादी बनो तो उसवाए रसूल से अपने घर को संवारने के लिए, मिलादी बनो तो नबी से लेकर गरीब नवाज तक, गरीब नवाज से लेकर मखदूम अशरफ तक, मखदूम अशरफ से लेकर अबुल गौस करम दीवान तक, अबुल गौस करम दीवान से लेकर हजरत बाला रहमतुल्लाह अलैह तक तमाम वलियों का एहतराम दिल में उतारने के लिए, मिलादी टाइम पास के लिए ना बनो, मिलादी बनो तो अल्लाह रसूल के लिए बनो। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमिनु बिल्लाहि वर रसूल, तुम्हें चाहिए, ये सेग़े अम्र है, सेग़े अम्र है, और अम्र के अंदर आर्डर होता है। अम्र किसे कहते हैं? आर्डर को, हुक्म को। गुजारिश नहीं की जा रही है साहब, आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि आप अल्लाह रसूल को मान लीजिए। अरे नहीं मानोगे अपना बुरा करोगे, अपने लिए जहन्नम तैयार करोगे। ये फायदे का सौदा, मान लोगे अल्लाह की जन्नत मिल जाएगी, नहीं मानोगे अपना बेड़ा गर्क कर लोगे। तो अल्लाह ने कहा फैलाए अम्र के साथ कि लितुमिनु, तुम अल्लाह रसूल को मानो, ईमान ले आओ। अच्छा देखें, मानने का क्या मतलब है? पहले अल्लाह वर रसूल, फिर रसूल, मखलूक में सबसे बेस्ट रसूल, और अल्लाह के मद्दे मुकाबिल या उससे पहले या उसके बाद न कभी कोई हुआ है और न कभी कोई हो सकता है। तो कहा बिल्लाही, अल्लाह को मानो, अल्लाह पर ईमान ले आओ। तो अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब? कि अब बंदगी हमारी होगी इय्याका नअबुदु, तो अल्लाह ही के लिए, व इय्याका नस्तईन, हकीकी मददगार कोई होगा तो अल्लाह ही होगा। अब अल्लाह कभी झूठ कभी बोल नहीं सकता, क्योंकि झूठ बोलना ये एक ऐब है, हुनर तो है नहीं। आज के दौर में ये चीज हुनर हो गई। जो जितना बड़ा झूठा वो समाज में उतने ही ज्यादा मोहतरम, कुर्सियां उसी के लिए छोड़ी जा रही हैं। आइए साहब, आइए साहब, साहब आ गए। जो जितना बड़ा झूठा, तो ये झूठ ऐब है, ऐब, हुनर नहीं है। और अल्लाह ऐब से, अरे बोले तो सही, ऐसा बोले कि बगल तक कम से कम आसपास आवाज जाए, ताकि लगे कि ये गुलामाने रसूल की महफिल सजी हुई है। यहाँ ठंडे लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ ठंडे लोग अल्लाह रसूल को मानने वाले लोग बैठे हैं। जरा जोर से कहें या रसूल अल्लाह। अल्लाह को मानने का मतलब ये कि अल्लाह हर ऐब, हर नक्स से, हर कजी से, हर कमी से पाक है। कुरान से पूछें कि परवरदिगार तेरी बात कैसी है, तो उसने कहा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह की जितनी बातें हैं सच्ची हैं। अल्लाह की जितनी बातें हैं सच्ची हैं। अगर वो कहता है तू काफिर है तो ये भी सच है, अगर वो कहता है तू मोमिन है तो ये भी सच है, अगर वो कहता है तू जहन्नमी है तो ये भी सच है, अगर वो कहता है तू जन्नती है तो ये भी सच है, अगर वो कहता है नमाज कायम करो तो सच है, अगर वो कहता है शराब छोड़ दो तो सच है,
अगर वो कहता है हराम से इज्तिनाब करो तो ये सच है। अगर वो कहता है हलाल से करीब हो जाओ तो ये सच है। अगर वो कहता है मस्जिदों में नमाजें अदा करो तो ये सच है। अगर वो कहता है माँ बाप की इज्जत करो तो ये सच है। अगर वो कहता है कि जालिमों जाबिर का दिफा करो तो ये सच है। अगर वो कहता है फिरऔन नमरूद शद्दाद अतबा शहबा अबू लहब अबू जहल यजीद को मरदूद कर दो तो ये सच है। अगर वो कहता है इब्लीस पर लानत भेजो तो ये सच है। अगर वो कहता है आदम का एहतराम करो तो ये सच है। अगर वो कहता है खलील की इज्जत करो तो ये सच है। अगर वो कहता है मूसा की इज्जत और तकरीम करो तो ये सच है। अगर वो कहता है ईसा इब्ने मरियम का एहतराम करो तो ये सच है। अगर वो कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताज़ीम करो तो ये सच है। अगर वो कहता है अली की तकरीम करो तो ये सच है। अगर वो कहता है करबला के ताजदार का एहतराम करो तो ये सच है। तो बंदा जो अल्लाह पर ईमान लाता है तो लाने का मतलब ये है कि जितनी उसकी बातें और जितने उसके बंदे, जितने उसके कहने में, जितने उसके अपने, जितने उसके खास बंदे, जितने उसके दोस्त, जितने उसके मुकर्रब, जितने उसके हबीब, जितने उसके महबूब, जितने उसके करीम, जितने उसके सफी और जो उसका मुस्तफा, जो सबकी इज्जत करे तो अल्लाह पर ईमान ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और रसूल पर ईमान ले आओ। रसूल पर ईमान ले आओ क्या मतलब कि जब दिल में आए उन पर हमला कर दो। हम गैरों से लड़े या अपनों से? क्या कहना? इज्जत रसूल पर हमला अपने लोग कर रहे हैं तो हम गैरों से गिला शिकवा क्या करें? याद रखें, नबी को कोई कहे कि हम नबी की तरह या नबी मेरी तरह तो इसमें उसकी तौहीन नहीं होती, बल्कि वो जो नबी से अपना कंपेयर कर रहा है, नबी की शान पर हमला हो रहा है। बेशक बेशक बेशक। वो तो इस लायक ही नहीं, वो तो इस लायक ही नहीं। तो ईमान लाने का क्या मतलब कि रसूल पे इख्तियार है? ईमान लाने का क्या मतलब रसूल मोहताज है? ईमान लाने का क्या मतलब कि मिट्टी जो औरों के साथ सुलूक करती है वही सुलूक नबी के साथ करे? ईमान लाने का क्या मतलब? ईमान लाने का क्या मतलब कि उनकी जाली की तरफ हाथ बढ़ा दो तो हराम हो जाए? ईमान लाने का क्या मतलब कि उनके गुंबद का एहतराम कर लो तो शिरको बिदातो हराम हो जाए? ईमान लाने का क्या मतलब? अरे ईमान लाने का मतलब पूछना है तो पूछो अबू बकर सिद्दीक से, जो कह रहे हैं मेरा जनाजा जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो कहीं और मत ले जाना, खाना काबा के सामने मत ले जाना, हरमे काबा में मत रखना, हजरे अस्वद के सामने मेरा जनाजा मत रखना। बल्कि उनकी वसीयत है, आप मुफस्सिरीन को पढ़ें तो उनकी वसीयत क्या है? ऐ उमर, ऐ उस्मान, ऐ अली, मेरा जनाजा नबी के कब्र अनवर के सामने रख देना और कहना हबीब आया है, हबीब के पास हबीब आया है, प्यार करने वाला आया है हबीब के पास। और कह देना कि आपके बगल में, आपके पहलू में क्या इस मोहब्बत करने वाले गुलाम के लिए कोई जगह है? कह देना। पता चला सिद्दीक का अकीदा है कि नबी अंदर सुनते हैं, नबी अंदर सुनते हैं, क्योंकि उनकी वसीयत है। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में ये पूरी वसीयत एक सफ़े पर नकल कर दिया है। जिसको चाहिए हवाला वो आए हमसे मिले और पढ़े तो सही कि हम सुन्नी बकवास नहीं करते बल्कि अल्लाह रसूल की बात करते हैं, अल्लाह रसूल की बात करते हैं। हम रिवायतों पे डंडी नहीं मारते, हम बाज आयतों को सुनाकर बाज को छिपाते नहीं, बल्कि अलिफ से लेकर वन्नास तक जो पूरे कुरान को माने वही अल्लाह के नजदीक मुसलमान है, वही अल्लाह के नजदीक मुसलमान है। अब देखें, आप जरा तवज्जो दें, गौर फरमाएं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि कहें आवाज दे, और आवाज देने के बाद नबी की आवाज आए
पता ये चला कि उनका अकीदा ये भी है कि नबी अंदर सुनते हैं और सुनकर जवाब भी देते हैं, सुनकर जवाब भी देते हैं। जब जवाब आए कि हाँ पहलू में लेटा दो तो लेटा देना, और जवाब ना आए तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। हजरत अली है, हजरत उस्मान है, हजरत उमर है, और वसीयत है अबू बकर सिद्दीक की। सहाबा जनाजे में शरीक हैं, सब मुसलमान, उनसे बेहतर मुसलमान आज तक पैदा ना हो सके जिनके लिए रसूल जन्नत की जमानत दे दे, कुरान जिनका कसीदा सुना दे, ऐसी जमात आज तक पैदा ना हो सकी। अब जरा गौर करो, तवज्जो दो। ये भी अकीदा साबित हुआ कि नेकोकार के रोज़े के बगल में अपने को दफन करवाना ये सहाबा की सुन्नत है। बेशक बेशक। कोई कहे कि धावा शरीफ की खानका में मेरी ख्वाहिश है कि 2 गज ज़मीन मिल जाए, मैं वहाँ दफन हो जाऊं, तो ये शिर्क बिदअत नहीं है बल्कि अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। कोई कहे हजरत बाला के पहलू में मुझे जगह मिल जाए, तो ये शिर्क बिदअत नहीं है, ये अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। सुन्नत ये मत कहा करिए कि कहाँ लिखा है, ये मत कहा करिए कहाँ लिखा है मुस्कुराना, कहाँ लिखा है खाना, कहाँ लिखा है चट्टी पर बैठना, कहाँ लिखा है फला फला फला, कहाँ ये सोचा करें कहाँ मना लिखा। बेशक बेशक बेशक। आप लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं तब तो नहीं पूछा कहाँ लिखा है, आप बिल्डिंग बना रहे हैं तब तो नहीं पूछा कहाँ लिखा है, आप रोज रंग बिरंग के पकवान खा रहे हैं तब तो नहीं पूछा कहाँ लिखा है, आप ऐसी ऐसी चीजें पी रहे हैं तब तो नहीं लिखा पूछा आलिमों से कहाँ लिखा है। लेकिन जिन चीजों को इस्तेमाल करके हमें अच्छों की याद आ जाए, हमें अच्छों की याद आ जाए, वो चीजें इस्तेमाल करना शरीयत का हिस्सा है, शरीयत का हिस्सा है। शराब पीना हराम कहाँ लिखा है, कुरान में है। सूअर खाना हराम कहाँ लिखा है, कुरान में है। वो जानवर ज़बह करके खाना कि जहाँ बुतों का नाम लिया लेकर ज़बह किया जाए वो जानवर खाना हराम है। जुआ खेलना हराम है, सट्टेबाजी करना हराम है, सूदखोरी करना हराम है, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन जब उसकी नज़ीर, उसकी मिसाल, उसका अक्स किसी ऐसी ही चीज में पाई जाए तो वो चीज भी हराम। बेशक बेशक। ताड़ी पीना हराम ये कुरान में नहीं लिखा, लेकिन हम हराम क्यों कहेंगे? इसलिए कि जो नशा इल्लत है उस नशे की वजह से वो चीज हराम है। तो देखें, शराब की इल्लत से हमने इस चीज को हराम कहा। तो शरीयत इस्लामिया को समझने के लिए उसको पढ़ना पड़ता है। सुन सुन के लोग जो आलिम और मौलवी बन रहे हैं ये बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। अब पढ़ें और अहले इल्म से करीब हों। मुसल्लों पर खाना काबा की तस्वीर बनी है तो हम इसलिए तस्वीर बना सामने पढ़ रहे हैं कि हमारा ध्यान जाए तो खाना काबा की तरफ। हम रसूल का गुंबद बना रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं कि हमारा ध्यान जाए तो रसूलुल्लाह की तरफ। हम जो तरह तरह की चीजें ये मस्जिदें बना रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं इसलिए कि हमारा ध्यान जाए अल्लाह की तरफ। हम यही वजह है कि हम जो मुहर्रमुल हराम में ताजिया बनाते हैं और ताजिया बनाकर हमें याद कोई और नहीं आता बल्कि इमाम हुसैन याद आता है। इमाम हुसैन खुराफात, मातम, लहवो लईब और बदअमनी जो नौजवानों में फैल रही है उस पर पाबंदी लगाओ और जुलूसे हुसैन, जुलूसे मोहम्मदी की तरह, जुलूसे हुसैन, जुलूसे मोहम्मदी की तरह निकालो अदब व एहतराम के साथ और बेहयाई और खुराफात के खिलाफ बयान करो, बंद करो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, रसूल को मानने का क्या मतलब है कि रसूल ने जो जो कहा है वो मानते चले जाओ। मन अहब्ब हुसैना फकत अहब्बनी, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ।
ईमान तकवा, ईमान तकवा, दिल में होता है ईमान, दिल में ईमान होता है और आपके जिस्म से तकवा जाहिर होता है। अगर दिल में ईमान है और नजर जो चल रही है वो ईमान के हिसाब से, तो आपका देखना तकवा है। दिल में ईमान है, जुबान जो हिल रही है ईमान के हिसाब से, तो बोलना तकवा है। दिल में ईमान है, आप सुन रहे हैं ईमान के हिसाब से, तो आपका सुनना तकवा है। दिल में ईमान है, आप हाथ से कोई काम कर रहे हैं तो ये करना तकवा है। दिल में ईमान है, आप चल रहे हैं ईमान के हिसाब से, तो आपका चलना तकवा है। दिल में ईमान है, आप सोच रहे हैं ईमान के हिसाब से, तो आपका सोचना तकवा है। दिल में ईमान है, आप पैसा खर्च कर रहे हैं ईमान के हिसाब से, तो आपका खर्च करना तकवा है। आपके दिल में ईमान है, आप किसी से मिल रहे हैं ईमान के हिसाब से, तो आपका मिलना तकवा है। तो तकवा ईमानी वर्कआउट को कहते हैं, ईमानी ज़ुहूर को कहते हैं, ईमानी सुदूर को कहते हैं। ईमान जब अपने रंग में आता है, ईमान जब अपने ढंग में आता है, ईमान जब अपनी शक्ल में आता है, ईमान जब अपनी सूरत में आता है, ईमान जब अपनी तश्कीली जसामत के साथ आता है, तो बंदों को लगता है कि ये चलता फिरता ईमान नजर आ रहा है। यही वजह है कि अताए रसूल, नाइबे नबी, गरीब नवाज, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के सुल्तान, जब हिंदुस्तान बटा नहीं था उस वक्त के आप सुल्तान हैं। जब सब एक थे, आज के वो सुल्तान नहीं हैं, वो उस वक्त के सुल्तान हैं जब सारे मुल्क एक थे, मुत्तहिद थे, सब ने माना उनको कि ये हमारे सुल्तान हैं, ये हमारे सुल्तान हैं। तो देखो आप गौर करो, वो अकेले आए और उनके खिलाफ कोई मामूली चौकीदार नहीं है, उनके खिलाफ कोई गांव का मुखिया नहीं है, उनके खिलाफ कोई लाखों करोड़ों पैसे का मालिक नहीं है, उनके खिलाफ उस वक्त का बादशाह है, पृथ्वीराज चौहान है, वो उनके खिलाफ है। तो वो आए अकेले, मगर उनके दिल में क्या है? लितुमिनु, उनके दिल में क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उनके दिल में ईमान है, उनके दिल में ईमान है। अब वो मुसल्ला फटा हुआ तस्बीह है, एक कासा है, और आप वहां पर जलवागर है, रेगिस्तान है, सर वो शादाबी वहां नजर नहीं आती। पृथ्वीराज चौहान उनके खिलाफ हो गया, उसके वुज़रा, उसके फौज, उसकी अफवाज उसके खिलाफ है। अब जरा गौर करें, पहले हम दिल में ईमान तो ले आए, दुश्मन खुद ब खुद हमारे सामने शेर होते चले जाए। ईमान की खराबी लेकर हम दिल में बैठे हुए हैं, तो जो आएगा वही हमें शिकस्त देता हुआ चला जाएगा। तो कहा ईमान ले आओ, ईमान। एक आया, बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा पंडित है, वो आने के बाद और वो इस्तिदराजी इख्तियार रखता है, जादू दिखाना, चमत्कार दिखाना, उसके अंडर में है, वो मालिक है। जब वो आता है तो गरीब नवाज बैठे हुए हैं, दिल में ईमान है, दिल में ईमान है, वो बैठे हुए हैं, वो इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा, वो इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा। उन्होंने पूछा क्या बात है, क्यों मेरा चक्कर लगा रहे हो, मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हो? उसने कहा मैं आपके अंदर देख सकता हूँ। तो कहा क्या देख रहे हो? कहा देख रहा हूँ कि आपके जिस्म में अंदर पूरी रोशनी भरी पड़ी है, सुभान अल्लाह, नूर नजर आ रहा। कहा अच्छा, फिर क्या मुझे मानने में तुम्हें दुश्वारी है? कहा एक काला धब्बा है, एक काला धब्बा और निशान जो मुझे बेचैन कर रहा है कि आपके सारे जिस्म में तो रोशनी है, फिर ये काला धब्बा कैसा? तो आपने मुस्कुराकर फरमाया कि तेरी नजर में जो कुफ्र है
क्या कहना बाबा। तेरी नजर में जो कुफ्र है उस कुफ्र का धब्बा है जो तुझे मेरी नूरानियत तक पहुंचने नहीं दे रहा है। यही वजह है कि गरीब नवाज को सब देख नहीं सकते, गरीब नवाज को सब समझ नहीं सकते। गरीब नवाज के सामने जाएंगे या ख्वाजा का माना मालिक उनको समझ में नहीं आएगा, ख्वाजा का माना मुख्तार उनको समझ में नहीं आएगा, ख्वाजा का माना मौला उनको समझ में नहीं आएगा, ख्वाजा का माना आका उनको समझ में नहीं आएगा, ख्वाजा का माना हिजड़ा समझ में आएगा। मैं बहुत तल्ख आजकल बोलने लगा हूँ, लेकिन बोलना इसलिए ज़रूरी है कि बंदों का जो अकीदा है वो बेनकाब हो जाता है। अगर किसी को तकलीफ हो तो वो अपने गिरेबान में झांके और अपनी इस्लाह करे। जब किसी अजीम शख्सियत का नाम ख्वाजा हो और लफ्ज़ 5 हो, एक माना ख़राब हो, 4 अच्छा हो, तो 4 का एतबार किया जाता है, एक को छोड़ दिया जाता है। तुम्हारे अब्बा हैं, सभी के अब्बा हैं ना, कुछ चले गए दुनिया से, कुछ हैं, लेकिन बगैर अब्बा के तो कोई है नहीं। अब अब्बा हैं तो आप वालिद साहब, अब्बू, अब्बा जो आपके गांव में ज़बान राइज है उस हिसाब से बोलते हैं। लेकिन आपके अब्बा का नाम अगर अब्दुल रहमान है तो आप अपने अब्बा का नाम नहीं लेते कि अय अब्दुल रहमान यहाँ सुनो, जबकि उनका नाम मौजूद है, लेकिन आप लेना गवारा नहीं करते। अब्दुल रहमान नहीं बोल सकते, आप अपने अब्बा की इज्जत कर सकते हैं, और उस बंदे की इज्जत आपकी तबीयत में दाखिल नहीं होती कि जिसको देख देख कर 90 लाख लोगों से ज्यादा काफिरों ने, पंडितों ने और बड़े बड़े रहनुमाओं ने कलमा पढ़ा और अपने धर्म को छोड़ दिया और कहा, ऐ मेरे मानने वालों, अब किसी और के पीछे किसी और बुत गदे में जाने की जरूरत नहीं। अब इस ईमान वाले मर्द को जो आया है संजर से, इस बंजर को गुलशन में तब्दील करने, इसको मान लोगे, अल्लाह रसूल को मान लोगे। तकबीर, रिसाला, आला हज़रत, दावा शरीफ, तकबीर, रिसाला। ईमान और तक़वा पुलसरात से गुजारने के लिए काफी है। ईमान और तक़वा जन्नत में दाखिल करवाने के लिए काफी है। ईमान और तक़वा कुरान की तिलावत के जरिए सवाब पहुंचाने के लिए काफी है। ईमान और तक़वा खैरात और सदका करके अल्लाह को राजी करने के लिए काफी है। ईमान और तक़वा सजदे की कबूलियत के लिए काफी है। ईमान और तक़वा इबादत की कबूलियत का नजराना अल्लाह तक पहुंचाने के लिए काफी है। ईमान और तक़वा इंसानी जिंदगी को फलाह और सलाह तक पहुंचाने के लिए काफी है। ईमान और तक़वा लोगों के तौबा और इस्तग़फ़ार के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करवाने के लिए काफी है। ईमान और तक़वा फरिश्तों का जवाब देने के लिए काफी है। ईमान और तक़वा बरोज़े हश्र मीज़ान से गुजारने के लिए काफी है। ईमान और तक़वा जिब्राइल की मदद के लिए काफी है। ईमान और तक़वा खुशनूदी इलाही तक पहुंचाने के लिए काफी है। लेकिन ये दोनों काफी है कब? जब जो दोनों बचे रहेंगे तब। आप कहें मेरे पास 10,000 है, लखनऊ तक पहुंचने के लिए काफी, लेकिन आप चले यहाँ से और गाजीपुर जाते जाते कोई पॉकेट साफ कर दे तो अब वो 10,000 जब रहे ही नहीं तो आप तक पहुँचाएंगे कैसे? बात समझ में आ गई ना? हमारी समझ में आ गई। तो ईमान और तक़वा जब सलामत रहेंगे तभी तो ये सब बहारें आपको मिलेंगी। और जब ये दोनों खतरे में पड़ जाएं तो देखो इब्लीस को, ईमान वाला था अब है। जो लोग बगल में सो रहे हो ना, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस ठंडे सुभान अल्लाह से आपका पड़ोसी उठेगा नहीं, फिर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई सोए ना
आप बिल्कुल ना सोए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सो चुके। अब सोने की जरूरत नहीं, अब उठने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है। ये जमाना कह रहा है मुसलमानों से कि अब बेदार हो जाओ, वरना मिटा दिए जाओगे, सफ़े हस्ती से खत्म कर दिए जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को अपना प्यार दिया है तो वो कलमा को हज़रात को दिया है, ईमान वालों को दिया है। तो देखें आप, मैं अर्ज कर रहा था कि ईमान और तकवा अजीम नेमत, अजीम सरमाया, लेकिन इनको बचाना जरूरी। इब्लीस तकवा वाला था, अब है जिनके नजदीक है वो जरा हाथ उठा दें। तकवा वाला है नहीं, वो न ईमान वाला रहा न तकवा वाला, वो बचा ना सका, वो बचा ना। अल्लाह ने कहा सजदा करो आदम को, तो जितने सच्चे थे वो सब सजदे में चले गए और एक झूठा बाइकाट हो गया, निकाल दिया गया। ईमान भी गया, तकवा भी गया। इसीलिए कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों, ऐ तकवा वालों, वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सब तो यही कहते हैं कि हम ही लोग सच्चे हैं। कौन कहता है कि हम झूठे हैं? कोई कहता है? कोई नहीं। बड़े से बड़े झूठे को पकड़ कर कहो कि तू कैसा है, तो कहेगा हम बहुत बड़े सच्चे हैं। और उससे जिन लोगों को फायदा हो रहा है वो भी मार्केट में घूमते हुए कहते हैं वो मेरे मालिक सच्चे हैं। आज जितने मजहब और जितनी तहरीकें और जितनी जमातें हैं, सबके रहनुमा और लीडर सच्चे हैं और सब यही कह रहे हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम तकवा वाले हैं और हमारे सच्चे ये हैं, हम इनके साथ हैं। तो आए ना जरा हम बता दें कि कुरानी नजरिए से और कुरानी रूह से कि सच्चा है कौन। और जब सच्चों को आप पहचान जाएंगे तो झूठे खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे। जैसे अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा है ही नहीं अल्लाह के सिवा। तो अब हमें समझ में आ गया सच्चा एक और उसके मुकाबले में जितने हैं सब झूठे। यही बात है ना, सिस्टम तो यही है ना। तो अल्लाह ने सारे खुदाओं का जिक्र इसमें नहीं किया, बस अपनी खुदाई का ऐलान कर दिया। बात जाहिर हो गई, बात बेनकाब हो गई कि अब कोई भी खुदा आ जाए, अब अल्लाह के मुकाबले में अगर वो है तो बातिल है, फासिद है, मरदूद है। तो इसीलिए कहा गया कि तुम्हारा मतलूब अल्लाह के सिवा अगर हो तो वो मतलूब झूठा, तुम्हारा मकसूद अगर अल्लाह के मुकाबले में हो तो तुम्हारा मकसूद झूठा, तुम्हारा महबूब अल्लाह के मुकाबले में हो तो तुम्हारा महबूब झूठा, तुम्हारा नजरिया अल्लाह के मुकाबले में हो तो तुम्हारा नजरिया झूठा। तो अब देखो, गौर करो कि सच्चे हैं कौन। जो अल्लाह कह रहा है कि आई ईमान वालों, तकवा वालों, सच्चों के साथ हो जाओ। तो हमने देखा कि बहुत सारे झूठे उस दिन बेनकाब हो गए जब हुजूर रातों रात शबे असरा से वापस आए और सुबह का वक्त है और बहुत सारे लोग इस्लाम से फिर गए क्योंकि वो झूठे थे। एक सच्चा निकला, जिसे दुनिया अबू बकर कहती है। उसने कहा कि अगर नबी कह रहे हैं कि रातों रात वो अल्लाह से मिल के आए हैं तो वो यकीनन सच कह रहे हैं। अबू बकर सच्चा है, नबी कह रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक है, तो क्या पता चला अब ईमान और तकवा उन्हीं का सलामत रहेगा जो अबू बकर के साथ रहेंगे, के साथ रहेंगे। आओ देखो, हजरत उमर कहते हैं कि हुजूर जो हरम में हाजी आते हैं तो जहां पर इब्राहिम खड़े होकर दीवार को बुलंद कर रहे थे, जो मकामे इब्राहिम है वहां पर नफल नमाज पढ़ने का भी सिस्टम होना चाहिए। जब आपने राय दिया, जब सच्चे राय देते हैं तो सच्चे कबूल कर लेते हैं।
सच्चे राय दें तो सच्चे कबूल कर लेते हैं। तो हजरत इब्राहिम ने, हजरत उमर फारूक ने ये राय दी नबी को कि ऐ नबी, जो मकाम इब्राहिम है, जो जगह है इब्राहिम की, वहां पर हाजी नफल नमाज पढ़ें। हमारी ये राय है, हमारी ये राय है। तो कुरान ने कहा मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, उस जगह पर हुज्जाजे किराम मुसल्ला नमाज पढ़ेंगे। मकाम इब्राहिमी मुसल्ला बन गया। किसकी राय से? हजरत उमर की राय से। तो हजरत उमर सच्चे, हजरत उमर सच्चे। तो ईमान और तकवा उन्हीं का बचेगा जो उमर के साथ हो जाएंगे, उमर के साथ हो जाएंगे, उमर के साथ हो जाएंगे। और मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, अब इनका जरा जायजा ले कि एक आयत उतरी और कहा जो नबी से मिलना चाहता है वो पहले सदका दे, सदका देकर नबी से मिले। क्योंकि लोग मिल कर नबी को परेशान कर रहे थे और बेजा वक्त उनका जाया कर रहे थे, गरीब और फकरा उनसे मिल नहीं पा रहे थे। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अमीर इनका सारा वक्त ले रहे हैं, तो ऐ अमीरों तुम पहले सदका दो फिर नबी से मिलना। ये हुक्म आम कर दिया गया। तो हजरत अली आए, सच्चे हैं, हजरत अली आए, सदका दिया और नबी से मुलाकात कर ली। फिर फौरन आयत जो नाजिल हुई थी, अल्लाह ने उसके हुक्म को रोक दिया और कहा इससे गरीब परेशान हो जाएंगे, वो सदका कैसे देंगे, नबी से मिलना उनके लिए दुश्वार हो जाएगा। तो एक आयत ऐसी है कि जिस पर सिर्फ अली ने अमल किया, एक आयत ऐसी है कि जिस पर सिर्फ अली ने अमल किया है। अब जरा देखें, सबसे ज्यादा आयतें कुरानिया अगर उम्मतियों में और सहाबा में किसी के हक में नाजिल हुई है 300 आयतें, तो वो एक सच्चा है जिसे अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। उन्हीं का बचेगा जो अली के साथ हो जाएंगे, अली के साथ हो जाएंगे। अब नवासे रसूल, लखते जिगरे बीबी फातिमा ज़हरा, मौला अली के नूरे नज़र और मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत की जान और उनके महबूब नवासे इमाम हुसैन, जो मदीना छोड़कर आप निकले अपने अहबाब और अपने खानवादे के साथ हरम से होते हुए, जब आपने कूफा का रुख किया और करबला की तपती हुई रेतीली जमीन पर जब आप पहुंचते हैं, तो वो नामनहाद बेईमान, गजलो फरेब करने वाला और झूठे प्रोपगंडे के जरिए अपने को अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन कहलवाने वाला वो लानती जो शराबी है, जो बेनमाजी है, जो मुहर्रमात की हुर्मत को पामाल करने वाला है, जो माँ की इज्जत को नहीं समझता, जो बहन की हुर्मत को नहीं जानता, अपने घरों की इज्जत से उसे कोई पासो लिहाज नहीं, वो मुल्क शाम में अपने महल में बैठकर इतराने वाला, घमंड और गुरूर करने वाला, यहाँ इमाम आली मुकाम के जाने सारों और उनके खानवादे पर जुल्म व तशद्दुद, उसके बिकाऊ जो फौजी है वो उठा रहे हैं। तो 22,000 तो सामने है, मगर यजीद के महल में, यजीद की हिमायत में जो सिक्कों के बदले बिक जाने वाले लोग लाखों की आबादी है। लेकिन करबला में जो नवासे रसूल खड़ा है, मेरा नबी फरमा रहा है इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहले जन्नत, मेरे दोनों नवासे जन्नती नौजवानों के सरदार। तो जन्नत का सरदार वही होगा जो सच्चा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, अल्लाहू अकबर। रिसालत, या अल्लाह। इमाम हुसैन, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। रिसालत, या अल्लाह। ईमान वालों और तकवा वालों, ईमान बचाना चाहते हो, तकवा बचाना चाहते हो, तो सच्चे के साथ यानी करबला में इमाम हुसैन के साथ हो। इमाम हुसैन सच्चे। अगर 1000 साल भी गुजर जाए तो सच्चे का खून रंग दिखा देता है। सच कभी दबता नहीं, सच कभी छिपता नहीं। 1000 साल गुजर जाने के बाद
जिस के मज़ार पर लोग खेतियां कर रहे थे, आबादियां बस गई थी, एक ऐसा सैलाब आया कि सबकी आबादी उजड़ गई, सबके खेत खलियान बह गए और उसका कब्र जाहिर हो गया, जिसे अब्बास अलमबरदार कहते हैं। तो सच कभी छिपता नहीं, सच कभी दबता नहीं। तो सच्चा वो होता है जिसकी सदाकत उभर कर दुनिया के सामने आ जाती है। तो हजरत अब्बास सच्चे हैं। तो ऐ ईमान वालों और तकवा वालों, अब्बास अलमबरदार के साथ हो जाओ। उनका बाजू कटा है, कमजोर मत समझो। उनका बाजू तो हसन और हुसैन है, उनके बाजू तो अल्लाह की नुसरत और तारीद है। तो अब्बास अलमबरदार सच्चे। आज हम बताएंगे कि सच्चों को छिपाने की कैसी नापाक कोशिशें की जा रही हैं। हम नापाकों का नाम लेने के कायल नहीं, हम तो बस पाक बताएंगे कि पाक कितने हैं। पाक से करीब रहो, अपना रिश्ता जोड़े रहो। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी शनाख्त बिकाऊ लोगों में नहीं है। तुम शुरू से बुजुर्गों को मानने वाले, शाहजहां की इज्जत करने वाले और औलियाए किराम के तबर्रुकात की हुर्मत करने वाले लोग हो। मोबाइल की तकरीरें, इधर उधर की बातें सुनकर अपने ईमान का, अपने तकवा का सौदा मत करना। हमेशा सच्चों के साथ जुड़े रहना। आओ आगे बढ़ो। अब देखा हमने कि एक ऐसे हैं जिनको दुनिया इमाम जाफर तो कहती है, मगर साथ में सादिक भी कहती है। सादिक का मतलब सच्चा, सादिक का मतलब सच्चा। तो इमाम जाफर सादिक के साथ हो जाओ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको बगदाद ने ठुकरा दिया, खाने को नहीं दिया, उनकी मदद के लिए मुंह फेर लिया। आप नहर के किनारे, दरिया के किनारे रहते, घास खाते, पानी पीकर अफ्तार कर लेते। तो सच्चा वो होता है जिसे एक वक्त में दबाने की कोशिश की जाए और फिर वक्त आए तो कहे कदमी हाज़िरी अला रकबती कुल्ले वली जिल्ला, मेरा कदम वलियों की गर्दन पर। तो सच्चा वो है जिसकी सच्चाई को अल्लाह ने तमाम वलियों पर जाहिर कर दिया। तो अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हो जाओ, ईमान और तकवा महफूज रहेगा। गरीब नवाज के साथ हो जाओ, ईमान और तकवा महफूज रहेगा। हजरत बाबा फरीद के साथ हो जाओ, जिनके तकवा का हाल ये है कि अगर आप कंकरी पे हाथ मार देते तो कंकरी शक्कर में तब्दील हो जाता। और बचपने की इबादत का हाल ये है कि जब जाए नमाज उठाते तो नीचे शक्कर मौजूद रहता। तो वो मसूद गंजे शक्कर, तो वो झूठा नहीं हो सकता। जिसकी रजा, जिसकी ख्वाहिश को अल्लाह पूरी करे, वो झूठा नहीं रहता, वो सच्चा रहता है। तो जो बाबा फरीद के साथ हो गया, वो ईमान और तकवा को बचाने वाला हो गया। अब देखो, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में आराम कर रहे हैं, उनके लंगर का मजाक उड़ाया गया कि इनके पास ट्रैक्टर में, बैलगाड़ियों में ये जो लद के प्याज है, सब्जियां हैं, गल्ले हैं, ये फसलें जो आ रही हैं, इतना पैसा इनके पास आता कहां से है। इंक्वायरी हो गई जब लोग आए बादशाह की तरफ से कि आपके पास इतना माल आता कहां से है। याद रखो, सच्चों पर तोहमत लगाना ये पुराना कल्चर है, लेकिन सच अपना रंग दिखा के रखता है। कहा इंक्वायरी करते हो, कहा आओ दिखाते हैं मेरा खजाना कहां से आता है, मेरी दौलत कहां से आती है। तो हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने अपनी जाय नमाज को उठाया और कहा देखो, जब लोगों ने सर झुकाया तो जेवरात और मालो मनार की नहरें जारी बसारी है। वो देखकर दंग रह गए। कहा ये नहर कहां से आ रही है? कहा मेरे रब के करीब से आ रही है। सच्चे हैं निजामुद्दीन औलिया, उनके साथ हो जाओ। वलियों की करामत का मजाक उड़ाना अक्ल से लोग आज के दौर में साबित कर रहे हैं। उनसे पहले कहिए कि अक्ल तो ये नहीं कहती कि 300 साल तक कुत्ता गार के दरवाजे पर बैठा रहे और जिंदा रहे। कुरान में है ना, सूरह कहफ में है। अब देखें, अक्ल तो नहीं कहती कि छोटे छोटे परिंदे कंकर लेकर आए और बड़े बड़े हाथियों को मार कर गिरा दे, है ना। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अक्ल तो नहीं कहती कि उज़ैर 100 साल के बाद फिर से जिंदा हो जाए।
और वैसे ही जवान हूँ। उनसे बड़ा उम्र में उनका बेटा नजर आया, 120 साल का उनका बेटा मौजूद जो बिल्कुल बूढ़ा हो गया और बाप बिल्कुल जवान। तो अक्ल में तो ये बात नहीं आती, लेकिन कुरान पढ़े, सूरह उज़ैर का किस्सा पढ़े, तब आपको पता चलेगा। कुरान जो अजाइबुल कुरान, जो अजीब वाकयात और किस्सों को बयान कर रहा है, वो इसीलिए ना कि तुम्हारे सामने जब अजीब किस्से बयान किए जाएं मेरे महबूबों के, मेरे दोस्तों के, तो घबराया ना करो, परेशान ना हुआ करो, क्योंकि ईमान और अकीदा अक्ल का नाम नहीं है, बल्कि दिल की नजर से बस मानते चले जाओ, मानते चले जाओ। तो महबूब इलाही की करामत मान लो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा जो होता है उसके दिल में हिर्से दुनिया, लालच, ख्वाहिश नहीं हुआ करती, बल्कि जब अल्लाह रसूल की बात आए तो वो अपनी सल्तनत को ठोकर मार देता है, और ठोकर मारकर वो ईरान से किछौछा चला आता और आकर बता रहा होता है कि सच्चे जो होते हैं वो किसी सल्तनत, किसी दुनियावी लालच के गुलाम नहीं होते। सच इसे कहते हैं जो जंगल में जाए भी तो अल्लाह की रहमत वहां बरसने लगे और लोगों की मुरादें पूरी होने लगे। अशरफ सच्चे हैं, इनके साथ हो जाओ, ईमान और तक़वा बच जाएगा। वकूनू मअस-सादिक़ीन। हज़रत महबूब रहमान अबुल गौस गरम दीवान के अंडर में 12 मौज़ूआत की ज़मींदारी आपने छोड़ दिया और कहा कि मैं ज़मींदारी करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, मैं अल्लाह की रजा के लिए, मैं अल्लाह की बंदगी के लिए, मैं अल्लाह को राजी करने के लिए, मैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए, मैं अल्लाह के दीन की नश्र के लिए मैं इसलिए दुनिया में आया। तो पूरे पूर्वांचल की औरंगजेब के इंतकाल के बाद अगर अंग्रेजों के बदमज़हबियत और बदअकीदियत के पैगाम को रोकने वाला कोई है तो वो अबुल गौस गरम दीवान है। तो महबूब रहमान अबुल गौस गरम दीवान सच्चे, इनके साथ हो जाओ। वो क्या साथ आपका देंगे जो खुद अपने अकाउंट और बैलेंस की फिक्र करते हैं और खुद बिरयानी खाने पर आमादा रहते हैं। वो आपको बचाएंगे, वो आपको बचाएंगे। जो अंग्रेजों का मुंह चूमना जायज़ कहते हैं और गरीब नवाज की चादर चूमना नाजायज़ कहते हैं, वो आपको बचाएंगे। अपने ऊपर मखमली जुब्बा पहनते हैं और बुजुर्गों के ऊपर अगर चादर चढ़ा दी जाए तो वो शिर्क बिदअत हराम, वो आपको बचाएंगे। सच को पहचानो, सच को पहचानो। जो अंग्रेजों के अब्बा डोनाल्ड ट्रंप को सोने का हार पहनाएं तो जायज़, और बुजुर्गों की बारगाह में हम फूल का हार पहनाएं तो नाजायज़, हराम। इस चीज को आप जब तक समझेंगे नहीं, लोग आपको हाँकते रहेंगे। हमारा ताल्लुक, हमारी निस्बत पुरानी एक हमारे असलाफ और अब तक जो हमारी निस्बत थी वो सऊदी से नहीं थी। हमारी निस्बत हमेशा रसूलुल्लाह के गुंबद से थी, उनकी जाली से थी, उनके गुलामों से थी, अबू बकर सिद्दीक से लेकर तमाम सहाबा से थी। सऊदी शरीयत नहीं बताता, बल्कि अल्लाह रसूल और सहाबा बताएंगे कि शरीयत क्या है। तो आओ पूछे कुरान से, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसने रसूल की मुखालिफत की उसने अल्लाह की मुखालिफत की, जिसने रसूल से जंग किया उसने अल्लाह से जंग किया, जो जिसने रसूल को गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी, जिसने रसूल को प्यार किया उसने अल्लाह को प्यार किया, जिसने रसूल का अदब किया उसने अल्लाह का अदब किया, जिसने रसूल के पीछे पीछे चलना पसंद किया उसने अल्लाह के पीछे पीछे चलना पसंद किया। जो रसूल से आगे बढ़ गया वो अल्लाह से आगे बढ़ गया। रसूल का ऐलान अल्लाह का ऐलान है, रसूल का बरी हो जाना अल्लाह का बरी हो जाना है। बस अल्लाह और रसूल में बस इतनी सी बात है कि वो इबादत का हकदार और रसूल की इबादत
नहीं होगी, इबादत अल्लाह की होगी, रसूल की इताअत होगी। लेकिन मैं यहाँ पर ठहर कर ये भी कह दूं कि अजीब ये तफरीक है, एक हल्की सी निस्बत शरीफा है कि आप इबादत अल्लाह की करेंगे, इताअत मुस्तफ़ा जाने रहमत की करेंगे, लेकिन खड़ा होना ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये मेरे नबी की अदा है। नमाज खुद खड़ी नहीं हो सकती, नमाज खुद खड़ी नहीं, नमाज खुद खड़ी नहीं होती। अगर आप खुद मुसल्ले पर न जाएं तो नमाज कैसे खड़ी होगी? मस्जिद में कोई नमाजी न जाए तो नमाज कैसे खड़ी होगी? नमाज चाहती है नमाजी को, तब नमाज खड़ी होगी। बात समझ रहे हैं ना हमारी? तो ऐसे ऐसे खड़े हो जाना ये मेरे नबी की अदा है, ऐसे हाथ बांध लेना ये मेरे नबी की अदा है, ये नजर सजदागाह पे जमाए रखना ये मेरे नबी की अदा है, जुबान से सूरह फातिहा की तिलावत करना ये मेरे नबी की अदा है, सजदा कर लेना ये मेरे नबी की अदा है, रुकू में चले जाना ये मेरे नबी की अदा है, बैठ जाना ये मेरे नबी की अदा है। ऐ नमाज तू बता कि तेरे अंदर किसकी अदा पाई जाती है कि रब की इबादतों बंदगी हो जाती है? तो वो कहती है नमाज तड़प कर कि देखो अगर मैं देख रही हूँ तो ये मेरे नबी की नजर है, अगर मैं बैठ रही हूँ तो ये मेरे नबी की अदा है, अगर मैं सजदा कर रही हूँ तो ये मेरे नबी की सुन्नत है। तो इबादत तो है खुदा की, मगर इस इबादत में नक़्ल अदा और हरकत और ढंग जो पाया जा रहा है वो किसी और का नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का पाया। बेशक सुभान अल्लाह। कहते रहे कि सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह ने बतला दिया कि सच्चों के साथ हो जाओ। अब हम सच्चों के पीछे लग गए, अब हम सच्चों के पीछे निकल पड़े। यही वजह है कि कुरान ने कहा यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हम बुलाएंगे तमाम लोगों को उनके इमामों के साथ। बेशक ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में बेईमानों के साथ लगे रहें और मैदान महशर में माहौल जिसका देखें उसकी तरफ चले जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। ये दारुल अमल है, जो करोगे वही भरोगे, जो करोगे वही भरोगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 नंबर का धंधा करें, वहाँ 1 नंबर में रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवा दें, ऐसा नहीं होता है। ये किरामन कातिबीन किस लिए है? बेशक कंप्यूटर का पुर्जा खराब और ढीला पड़ सकता है, किरामन कातिबीन की तहरीर कभी रुक नहीं सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती, वो लिखते जा रहे हैं, जो करोगे वो लिखते जा रहे हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह कहेगा चलो आओ तमाम लोग हाजिर हो जाओ, सब हाजिर हो गए। वो कहेगा पहनपुरा के लोग अपने इमामों के साथ आ जाएं, महेशपुर मस्ती के लोग अपने इमामों के साथ आ जाएं, रानीपुर के लोग अपने इमामों के साथ आ जाएं, मोहम्मदाबाद के लोग अपने इमामों के साथ आ जाएं, सब अलग अलग हो जाएंगे अपने अपने इमामों के साथ। तो मुहद्दिसीन ने लिखा है इमाम 2 तरह के होंगे, एक वो इमाम जो शरीयत के इमाम है, क्या कहना, एक वो इमाम जो तरीक़त के इमाम है। शरीयत के इमाम 4 हैं जिनकी हम तकलीद और पैरवी करते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफई। इन 4 में से जो एक की पैरवी करता है वो उनके पीछे रहेगा, वो उनके पीछे रहेगा। हम उम्मत मोहम्मदिया की बात कर रहे हैं, उनसे पहले जाएंगे तो जिन्होंने फिरऔन को अपना इमाम बनाया है वो उसके साथ, और जिसने मूसा को अपना इमाम बनाया है वो उनके साथ, जिसने नमरूद को अपना इमाम बनाया है वो उसके साथ, जिसने इब्राहिम को अपना इमाम बनाया है वो उनके साथ। तो जिसके जो इमाम होंगे वो उनके साथ। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि नमरूद कहाँ जाएगा और उसके पैरोकार कहाँ जाएंगे, इब्राहिम कहाँ जाएंगे और उनके पैरोकार कहाँ जाएंगे। अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं। तो आए उम्मत में देखें, शरीयत के इमाम हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा, हम उनके पीछे। लेकिन हमारी तरीक़त के इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, हमारे तरीक़त के इमाम अताए रसूल नायबे नबी गरीब नवाज है, हमारे तरीक़त के इमाम हजरत ख्वाजा
मुईनुद्दीन है, हमारे तरीक़त के इमाम बाबा फरीद है, हमारे तरीक़त के इमाम महबूब इलाही है, शेख अलाउल हक कंडवी है, मखदूम हिसामुल हक है, अबुल गौस गरम दीवान है, हमारे तरीक़त के इमाम है। हम इनके साथ होंगे, हम इनके साथ होंगे। तो इसीलिए कहते हैं दुनिया में इमाम बनाओ उन्हीं को जो सच्चों का एहतराम करते हैं, जो इमाम आज़म की इज्जत करते हैं, जो गरीब नवाज की इज्जत करते हैं, जो अब्दुल कादिर जिलानी की इज्जत करते हैं, जो तमाम औलिया किराम की इज्जत करते हैं। अरे जिन्हें अल्लाह ने अपना दोस्त कहा है और कहा है ये किसी और के दोस्त नहीं है, औरों को छोड़ देते हैं मेरी वजह से, औरों को छोड़ देते हैं मेरी वजह से, क्योंकि ये दोस्त मेरे हैं। तो अब ऐ नबी आप उनसे कह दे, मन आदली वली जन, जिसने मेरे दोस्त से दुश्मनी की, फकद आज़नतहु बिल हर्ब, उसके साथ मैं ऐलाने जंग करता हूँ, उसके साथ अब मेरी नुसरत और हिमायत और ताहीर नहीं रह सकती। जो मेरे दोस्तों का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, और जो मेरे दोस्तों का दोस्त है वो सच्चों के साथ है। कयामत में उसी की बख्शिश होगी जो औलिया किराम का एहतराम करता है। अल्लाह तबारक व तआला इस मुक़द्दस महफिल को कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए। और दुआ ये है कि जितना आपने सुना है कम से कम 2-3 बात ही आप याद रखें। सारी बात तो याद नहीं रख सकते, लेकिन 2-3 बात याद रखें और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। अपना इमाम भी, एक बात आखिरी बात बस मिसाल के तौर पर कि आप ज़कात देते हैं, तो ज़कात देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि मुस्तहिक तक पहुँचाएं।